Hello everyone. So today question is remove all occurrence of a substring. So let's see. You have a given two string s and part. जो एक string है वो आपकी s है, एक string आपकी part है. You have to perform the following operation. I hope that आपने questions read कर लिए होंगे. You just need to find the leftmost occurrence of the substring part. ठीक है, आपको जो leftmost occurrence है वो आपको निकालना है substring part का and उस string s से आपको remove कर देना है, right? Okay. So you have to return as after removing all the occurrence of a part. A substring is a continuous sequence of a characters in a strings. Let's see. जो s है is a continuous sequence of characters. मतलब जो आपका जो s है वहाँ से आपको जो part है string उसको आपको remove कर देना है. Then s आप given करेंगे. Okay, let's see. So let's see here. Let's say you have a string this, right? D A A B C B A A B C B C. Okay, so this is your string and your second string is part, which is nothing but ABC, right? So now you are doing the modifications, right? So I will update the string as every time. So let's see. I'm saying my string s will be now D A A B C. Once I check, I have this ABC which is present in part, right? अब ये string आपके part के string में present है, so I will delete this. Okay, now B A A B C. Again A B C जो कैर है ये आपका part में present है, right? So I will delete this. Let's say जो first time जो string बनी थी सबसे पहले वो write कर लेते हैं. तो A B C आपका यहाँ पे delete हुआ था. Now next time आपकी जो string बनेगी वो कुछ इस तरह से string में store हो जाएगी. Okay, and third time पे again I am checking D A B A A B C again आपका present है तो इसको delete कर देंगे. Okay, and again I am going to so यहाँ पे हम D A B लेंगे और A B C again आपका present है. So this is your final output, which is this, right? Right now we are looking for the brute force approach only, right? Let's see the code. अभी हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर रहे हैं कि एक हम नई स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे, हम अपनी जो एस स्ट्रिंग है उसी को अपडेट करेंगे, राइट? सो अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, राइट? स्ट्रिंग को जब आप अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है. लेट्स सी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, बट सी द ब्रूट फोर्स अप्रोच. लेट्स से while as डॉट इंक्लूड्स, राइट? इंक्लूड्स मेथड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. आई विल चेक कि क्या ये एस हमारे पार्ट को इंक्लूड करता है. इफ करता है तो देन आई विल से टू रिप्लेस दैट पार्ट, राइट? अब ये रिप्लेस कैसे करेंगे? सो आई विल रिप्लेस बाय एम्प्टी स्ट्रिंग एंड आई विल रिटर्न एस हियर, राइट? सो लेट्स रन दिस, सी व्हाट इट विल गिव. It's taking TLE error, right? So let's see once. It should not give TLE error. Okay, so we are not updating S here, right? We have to update S every time. That's why maybe it's giving. Let's see. Okay, so now it's a brute force approach is running. Okay, तो यहाँ पे जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो देख लेते हैं. अब यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आप वर्स्ट केस में अगर आप देखो तो आप वीको ऑफ आपके जो पार्ट स्ट्रिंग है, लेट्स सी हाफ,
तो आप वीगो ऑफ एन स्क्वायर बाई एम ट्रेवर्स कर रहे होंगे, एंड एस जो है वो एवरी टाइम आपका अपडेट हो रहा है. सो कैन आई से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, कैन आई से दिस इज एन स्क्वायर बाई एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी, एंड जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी let's say this, right, आपकी n रह जाएगी. So it is Vigo of n and it is Vigo of n square by m. So let's come to the more optimized solution. So अगर हम more optimized solution में जाएं, can I say we can do this by the stack, right? तो हम इसको stack के थ्रू भी कर सकते हैं. Okay, so let's see. Let me copy this. So come here, right? And now let's see. So we have a stack here, right? ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो पुश होगा ये आपका डी पुश होगा, राइट. अनदर कैरेक्टर जो पुश होगा वो आपका ए पुश होगा. अनदर कैरेक्टर जो पुश होगा वो आपका ए पुश होगा, राइट. सो अभी हमें नहीं पता कि जो ये कैर है ये पार्ट की कैर के इक्वल है या नहीं है, राइट. सो आई विल से कि मेरा जो स्टैक है उसमें आपको m कैरेक्टर्स बैक जाना है, which is something like this: D A and A. तो m कैरेक्टर्स बैक जाना है और चेक करना है, बट ये तो स्ट्रिंग फॉर्म में है. सो आई विल कन्वर्ट दिस इन स्ट्रिंग फॉर्म. वंस आई कन्वर्ट दिस इन स्ट्रिंग फॉर्म, this is something, right? and it will check क्या ये D A A A B C के इक्वल है, आंसर है नहीं. so I will say कि स्टैक आप फर्दर जाओ तो यहाँ पे हम जाएंगे बी को पुश करेंगे, ऑन द सेम हम बी को पुश करेंगे, ऑन द सेम हम वो एंड सी को पुश करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे जब आपने बी को पुश किया था आपने अगेन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप स्टैक की लेंथ आपकी m पार्ट, लेट्स से पार्ट की लेंथ m है, स्टैक की लेंथ m के इक्वल हो जाती है, तो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, या m से बड़ी जा रही है तो भी आपको m कैरेक्टर्स के लिए चेक करना पड़ेगा. m कैरेक्टर्स स्टैक की m कैरेक्टर्स होंगे जो आपको यहाँ से मिल रहे होंगे, जो आपको बैक से मिल रहे होंगे, राइट. तो हम उन m कैरेक्टर्स को ही चेक करेंगे. इफ़ वो मैच करेंगे देन आई विल से टू स्टैक कि अपनी लेंथ को अपडेट कर दो, राइट. ओके, सो ये बी में भी सेम वर्क करेगा, राइट. इट विल चेक फॉर द बी ए एंड दिस बी एंड ए. सो एरे के फॉर्म में जब आपका आएगा तो ये आपका एरे के फॉर्म में जब आप चेक करोगे माइनस m लेंथ के लिए ये कुछ आपका ए एंड अगेन बी, राइट. तो कुछ इस फॉर्म में आ रहा होगा, राइट. सो आई विल से कि यहाँ पे इसको ज्वाइन के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट, राइट. इसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड चेक कर लेंगे कि ये पार्ट के इक्वल है या नहीं है. इफ़ इट इज़ इक्वल देन आई विल कट, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, सो आई विल गो फर्दर, राइट. आई विल गो फर्दर. नाउ आई विल गो फॉर द सी. अब मैं सी में करूँगी, सी को पुश करूँगी एंड अगेन आई विल चेक फॉर दिस सी बी ए. सो मैं स्टैक की लेंथ की m कैरेक्टर्स भाग जाऊंगी, यानी यहाँ पे आपके पास होगा ए बी एंड अगेन सी, राइट. तो इन जैसे मुझे ये कैरेक्टर्स आपके मिल जाते हैं आई विल से टू माई स्टैक टू अपडेट योर लेंथ. तो अब जो स्टैक की जो लेंथ है वो यहाँ पे अपडेट होगी. एक तरीका ये था कि हम यहाँ पे स्टैक में जाते
स्टैक में जाते, ठीक है, और जैसे हमको यहाँ पे ए बी सी यानी जो पार्ट है वो मिल जाता, वैसे ही मैं अपने स्टैक से बोलती कि उसको पॉप आउट कर दे, राइट। बट वंस इन विल बी द केस कि आपको ए, लेट्स से यू आर सेइंग कि सी मुझे मिल गया बट बी मिल गया बट ए यहाँ पे नहीं है, लेट्स से ई है, देन आई विल नीड टू पुश इट अगेन। तो ये जो मैटर होता है उसमें मैं अगेन जाके पुश करती है, बट ये प्रैक्टिस जो होती है बैड प्रैक्टिस होती है। सो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं स्टैक में कि आप स्टैक की लेंथ को आप अपडेट कर दें, राइट। सो आई विल से कि स्टैक डॉट लेंथ जो होगी वो मेरी अपडेट हो जाएगी, वो मेरी -m हो जाएगी, वो मेरी -m हो जाएगी, लेट्स से ओके। तो ये आपकी -m यानी ये माइनस दिस लेंथ हो जाएगी। तो अब स्टैक आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टैक। तो अब जो आपके स्टैक के पास होगा ओके, तो यहाँ पे लेट्स सी दिस स्टैक, राइट। तो अब अगर मैं देखूं तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे स्टैक में क्या है, इसमें डी है, देन ए है, देन ए है, ठीक है। इसी तरह से हम फॉरवर्ड फिर पुश करते जाएंगे। अब आपका यहाँ पे ये कैरेक्टर्स आपके डिलीट हो चुके थे, तो अब हम जो ith कैरेक्टर पे पहुँचे हैं वो बी पे पहुँचे हैं। आई विल पुश बी एंड चेक अगेन 3 कैरेक्टर्स के लिए, राइट। 3 कैरेक्टर्स यानी पार्ट की लेंथ के कैरेक्टर्स के लिए चेक करेंगे, ओके। सो लेट्स सी द कोड। So let's say stack, right, and I'm going to care of s, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टैक में आपके इसमें आपको जो कैर है वो मैं पुश करती जा रही हूँ, राइट, ओके। नाउ द थिंग इज इफ माई स्टैक देयर विल बी अ टाइम कि आपका जो स्टैक है वो आपके मोर देन इज इक्वल टू m हो जाएगा। व्हाट इज m? सो लेट m इज इक्वल टू पार्ट डॉट लेंथ, राइट। अगर ये मोर देन इक्वल टू लेंथ होता है तभी हम बोलेंगे कि स्टैक डॉट, अब स्टैक की हमें जो लेंथ है वो कैसे हम निकालेंगे, -m के लिए तो हम यहाँ पे स्लाइस यूज़ कर सकते हैं ताकि ये बैक के जो m कैरेक्टर्स हैं वो ये निकाल देगा आपके, राइट। नाउ अब यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप तो करेंगे बट पॉप ऐसे नहीं कर सकते आप, राइट। वी नीड टू चेक वन मोर कंडीशन। व्हाट द कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्टैक डॉट स्लाइस -m किया है, राइट। इफ दैट इज इक्वल टू योर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट, जो आपकी पार्ट स्ट्रिंग है उसके इक्वल होगा, बट यहाँ पे आपको जो मिल रहा है आंसर है वो आपको एरे मिल रहा है, राइट। हाउ यू विल चेक दिस, क्या मैं इतनी स्ट्रिंग को जॉइन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, जॉइन के थ्रू कन्वर्ट कर सकती हूँ, आंसर है यहाँ, लेट्स सी डॉट join, let's say here I'm saying रिटर्न। अब मेरा स्टैक तो आपके एरे के फॉर्म में होगा तो मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेती हूँ एंड लेंथ माइनस इक्वल टू m, राइट, एंड लेट्स सी because we are updating in length, right, directly, so let's run this. Okay, so what will the time complexity here? So जो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो यहाँ पे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोसेस के लिए जाएगी, स्टैक के लिए आपकी, इट विल बी
समथिंग। देखो यहाँ पे आप देखो तो विगो ऑफ एन जा रहे हो, राइट, एंड यहाँ पे आप फिर स्टैक का जो है वो यहाँ पे एन जा रहा है, तो कैन आई से विगो ऑफ एन इंटू एम, कैन आई से विगो ऑफ एन into m? Now the space complexity will be, यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी इन दी वर्स्ट केस आपकी विगो ऑफ एन जा सकती है, राइट, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टोरिंग इन योर स्टैक, राइट, so in the worst case it will go to vigo of n. Okay, now the thing is, interview will not be happy with this time complexity, right, so he or she can say to you that you have to optimize this. Okay, so जब ऑप्टिमाइजेशन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आप KMP एल्गोरिदम भी यूज़ कर सकते हैं। बाय KMP एल्गोरिदम अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज़ समथिंग, बाय KMP एल्गोरिदम इट इज़ समथिंग विगो ऑफ n प्लस m, राइट, तो वहाँ पे आप इसमें आप इसके थ्रू ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, राइट, एंड अभी के लिए स्टार्ट रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।